Today we are to discuss with, you can say, the role of poetry in a political society. And it is said that poetry unites, जबकि political politics जो है वो आपको डिवाइड करती है. और पोइट्री आज के हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड एज में किस तरह से आज रेलेवेंट है. So we are to discuss all those things which we already, you can say, discussed in the previous sessions. Right now, we are going to typically, you can say, describe those, you can say, quotations, those elements which are important in the perspective of politics and poetry. और खास तौर पर आज की जो इंडस्ट्रियलाइज एज है उसमें पोइट्री का किरदार क्या है, आज हमने उन बातों को डिस्कस करना है. जी Yes, sir. जी Poetry has always been a powerful medium throughout human history. Even in ये पावरफुल previous मीडियम है पूरी इंसानी तारीख के अंदर. इवन इन दिस इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड mechanized age, poetry does not have a function to play because where politics divides, poetry unites. जी even in this industrialized and mechanized age, people poetry does have a function to play because where politics divides, poetry unites. जी Shamus Hani, in his essay "Readdress of Poetry," defined the effectiveness and creative role of poetry in society. हाँ, तो सोसाइटी के अंदर जो उसका किरदार है वो मोर और लेस हमें नजर आता है कि वो किस तरह से है, और defines the effectiveness and creative role in the society. He disagrees with the idea of Plato in the Republic, who regards poets as an ideal creature. कि poets जो हैं वो ideal creature हैं. Henne defends poetry by explaining its functions in society. He also points that the true art of poetry is above all prejudices. कि जो ट्रू आर्ट ऑफ पोइट्री है तो तमाम prejudices से मतलब जो है वो and worldly consideration. He says that art should not lose its effectiveness by representing culture and politics. कि आर्ट को जो है वो अपनी effectiveness को खोना नहीं चाहिए किसी भी शक्ल के अंदर. कि मतलब जब आर्ट जो है वो मतलब पोइट्री पॉलिटिक्स का एक तरह से प्रोपेगेंडा बन जाएगा. art should not be a propaganda, you can say, tool. इसको नहीं बनना चाहिए और इसकी इफेक्टिवनेस तभी होगी कि जब ये कल्चर और पॉलिटिक्स से परे लिखेगा. जी Shamus Hani sustains very clear notions about art in general and poetry in particular. Coming from Irish background, he closely observed the relationship between art and politics. ठीक. The first problem he due to the influence of politics was of language. हाँ, तो English पहला was जो regarded मसला था जो उसको नजर आ रहा था ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिक्स, वो लैंग्वेज का था. इंग्लिश वाज रिगार्डेड एज द लैंग्वेज ऑफ द एनिमी. कि अंग्रेजी जुबान जो थी वो दुश्मन की जुबान, अंग्रेजों की जुबान, जबकि आयरलैंड जो आयरिश लैंग्वेज थी उसको वो अपनी लैंग्वेज लगती थी. एंड इंग्लिश लिटरेचर वाज अनएक्सेप्टेबल टू द हेनेस कंट्रीमैन, वो देयरफॉर एन अनपैट्रियोटिक एक्ट. तो जब आप इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं तो वो एक तरह से अनपैट्रियोटिक एक्ट जो है वो लगता था. चूंकि आयरलैंड के ऊपर कब्जा किया हुआ था इंग्लैंड ने, so that's why it used to be considered as, you can say, unpatriotic, you can say, notion समझा जाता था. जी English was regarded as the language of enemy, and English literature was unacceptable to his countrymen was therefore an unpatriotic act. Haney begins to feel that Irish patriotism, particularly the fanatic nationalism, was poisonous rather than healthy. जो The फनेटिक response नेशनलिज्म है was poisonous rather than healthy. ये जो पैट्रियटिज्म है, ये जो नेशनलिज्म है, ये हेल्दी नहीं है, ये पॉइजनस है. इससे इंसान बिखरते हैं. और इट ओनली सर्व टू नैरो डाउन द आयरिश थिंकिंग, और ये नैरिश थिंकिंग को मजीद नैरो डाउन करेगा. जी
Irish language and tradition were a work of national identity, but on the other hand, were chains binding free thinking. So on the other hand, were change binding and free thinking. The study of English literature and it throughout exposed him to thought outside the Irish culture and enlarge his mind. कि उसने अपना mind जो है वो और Hannah's poetry therefore looks within but also beyond the Irish. तो Hannah की जो poetry है वो मतलब जो है वो जो है वो अपने अंदर झांकने का एक नाम है जो पोएट्री गा रहा है और ये सिर्फ आयरिश बैकग्राउंड के अंदर जो है वो नहीं रह जाती बल्कि जो है वो आयरलैंड के बैकग्राउंड से वो परे जाके बात करता है जी Stevens and many others believe that poetry is not meant just for aesthetic satisfaction. हाँ Their इसका view काम सिर्फ was that एस्थेटिक सेटिस्फेक्शन नहीं है कि आप इसकी राइम स्कीम से जो है वो लुत्फानंदोज हो आप इसकी इमेजिनेशन से लुत्फानंदोज हो देयर व्यू वाज दैट पोएट्री कैन नॉट एंड शुड नॉट बी डाइवोर्स फ्रॉम पॉलिटिक्स कि पोएट्री जो है वो नहीं की जा सकती एंड कैन नॉट एंड शुड नॉट नहीं की जानी चाहिए फ्रॉम पॉलिटिक्स पोएट्री मस्ट स्पीक फॉर दोज हु हैव बीन सप्रेस्ड कि जो सप्रेस्ड है उनके लिए बोलना चाहिए हु कैन नॉट स्पीक फॉर देमसेल्फ जो अपने हकूक के लिए बात नहीं कर सकते जी poetry is the voice of readdress. Stevens disagree with those who only emphasize the aesthetic and artistic value of poetry. हाँ कि जो सिर्फ एस्थेटिक और आर्टिस्टिक वैल्यू ऑफ पोइट्री के हवाले से बात करते हैं वो उनके हवाले से मतलब जो है वो इस बात को डिस्कार्ड कर देता है और वो मतलब इस बात को कहता है कि पोइट्री का सिर्फ काम जो है वो सिर्फ इस नोशन तक बात नहीं करना बल्कि पोइट्री इस नोशन से आगे ज्यादा मतलब जो है वो बड़ा पॉइंट है तो अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट ऑफ व्यू पोइट्री क्रिएट्स अ वर्ल्ड ऑफ आर्ट as opposed to the world of reality and it does not feel happy with the soul of poetry poetry shall do more than just reflect वो सिर्फ reflect नहीं करती but it gives some more ways और ये justify करती है चीजें जी Henry evaluates the dangers of the influence of politics on poetry. He says that politics damages the faculty of rationality. हाँ तो Therefore, the पॉलिटिक्स जो है poets can't वो फैकल्टी ऑफ पर्सनालिटी को डैमेज करती है रैशनैलिटी को वो डैमेज करती है और इसी तर्ज के साथ देयरफॉर द पोएट्स कैन नॉट सर्व सोसाइटी विद यूटिलिटी ऑफ पोएट्री तो जो पोएट्स हैं वो सोसाइटी को सर्व नहीं कर सकते ही सेज पोएट्स शुड नॉट नैरो डाउन देयर स्कोप कि पोएट्स को अपना स्कोप नैरो डाउन नहीं करना चाहिए बाय लिमिटिंग पोएट्री टू सर्टेन डायमेंशंस कि वो सर्टेन डायमेंशन के अंदर पोएट्री को लिमिटेड करते हैं ऑफ टाइम एंड स्पेस it should be free from any restriction तमाम तरह की पाबंदियों से आजाद हो some demand that poets should write against the common trend उनको common trend के against लिखना चाहिए to shock the minds of people एक ऐसा नुक्ता नजर देना चाहिए जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुना हो वो बिल्कुल एक नया हो they should write revolutionary poetry उनको revolutionary poetry लिखनी चाहिए but the impact of poetry is not practical लेकिन it's psychological ये practical sort of नहीं है बल्कि psychological poetry does not force man to go and fight कि वो इंसान को ये नहीं कहती कि आप जाएं और जाके जो है वो आप लड़ना शुरू कर दो बल्कि पोइट्री का जो असल काम है वो मोर और लेस ये है कि आप इस काबल मतलब लोगों को बनाएं कि लोग जो हैं वो अपने राइट के लिए मतलब जो वो स्ट्रगल कर सकें तो व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट ये तो पोइट्री डज नॉट फोर्स मैन टू गो एंड फाइट बट द पोइट्री शोज दैट व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट the most important function of poetry to create psychological effect एक नफ्सियाती असर जो है वो कायम करना है rather than lead to violent practically if poetry becomes practical according to Haney it will not remain poetry it will become a propaganda ये poetry नहीं रहेगी बल्कि ये क्या बन जाएगी propaganda होगी जी And he explains that in time of practical tension and national disaster, there was common trend of generalizing and simplifying the situation in black and white. The real point is that a political situation is never too simple as to be labeled into opposite elements. जी Politics divides men. poetry promotes the Poetry love of promotes man the love of man. जी Poetry shows that all men are human beings and they deserve sympathy. But हाँ politics tells us that some deserve our worth. If poetry becomes politics, हाँ then कि it will कुछ जो not है वो remain हमारी poetry, मोहब्बत it will मांगते हैं divide. और कुछ जो है वो हमारा गुस्सा और if poetry becomes politics
then ये पोइट्री नहीं होगी, it will divide humanity into friends and foes, और ये प्रोपेगेंडा बन जाएगी जी। To evaluate the role of poetry in political crisis, Henry quotes T.B. Yeats, an Irish poet who remembers the Irishmen who were killed in the Rising of 1916. But he 1916 is के अंदर also मतलब लोग मारे गए आयरलैंड की आजादी हासिल करते हुए, वो उनके हवाले से मतलब जब उनको रिकॉल करता है, but he is sorry for the Englishmen who died in the fight, talking about the humanitarian zeal of poetry, and he says that Yeats considers both enemies and friends as men, कि वो उनको दोनों को दोस्त और मतलब जो है मतलब फ्रेंड्स मानता है और दुश्मन मानता है। He does not discriminate between the Irish people and the English people, वो इन दोनों के दरमियान कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। वो बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट नहीं करता इंग्लिश पीपल और आयरिश पीपल के दरमियान। और पोइट्री कन्वेज टू अस एवरी मैन वेदर ब्लैक और वाइट, आयरिश और इंग्लिश, हैज द सेम फीलिंग्स, इनके अंदर मतलब एक जैसा पैशंस एंड ब्लड, all should you can say all should be regarded as equal, there should be कि सबको मतलब जो है वो बराबर समझना चाहिए। और ये पोइट्री का काम है कि पोइट्री मतलब जो है वो ये करती है be regarded equal and there should be no compromise on the merit, और मेरिट पर किसी किस्म का कोई compromise नहीं होगा। और इसी तर्ज के साथ इन शॉर्ट पोइट्री should not follow the force of gravity, कि पोइट्री को मतलब जो है वो इस फोर्स को मतलब जो है वो फॉलो नहीं करना चाहिए कि जनाब आप बुरा की तरह और अच्छा की तरह, बल्कि उसको दोनों साइडों को बैलेंस करना है। और अगर वो पोइट्री दोनों साइडों को बैलेंस नहीं करती तो फिर ये याद रखिएगा कि वो पोइट्री नहीं कहला सकती जी। regarding this role of poetry, Hannah quotes Simon Weil, who in her book Gravity and Grace writes that the function of poetry is to serve as a balancing force. बैलेंसिंग फोर्स, ठीक है, ये बैलेंस करती है, Politics वहां पे बुरा है जो अच्छा है वो उन दोनों को मतलब दोनों फोर्सेस को, और ये नहीं है कि सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू देगी बल्कि उसके पैरेलल दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी हमारे सामने शेयर करेगी जी। In politics, we are always carried away by the force of gravity. We always try to side with the weak party. The point which poets tell us to make is that it is not the function of poet and poetry to side with the weak party. The poet So should in go politics with the we are always carried away by the force of gravity, कि जिस तरफ हमारा मतलब जो जुड़ा होता है, हमारा कंसर्न जुड़ा होता है, we always try to side with the weak party, कि पॉलिटिक्स के अंदर हम हमेशा वीक पार्टी का साथ देते हैं। The point which poet wants to make is that it's not the function of poet and poetry to side with the weak party. Poet को मतलब merit पर जाना चाहिए, और if the weak is wrong then it's necessary not to support it, rather it must be condemned, और इसको कंडेम करना चाहिए। ये नहीं है कि अगर पोइट्री जो है वो वीक देख रही है तो उसको समझ रही है कि यही सही है, नो नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं होगा, कि जो जहां गलत है उसको गलत कहना होगा। और पोइट्री स्पीक्स द ट्रुथ, इट डज नॉट सीक बैलेंस। पॉलिटिक्स सीक्स बैलेंस, कि वो अच्छे और बुरे को दोनों को मतलब एक तरह से मतलब जो है वो बैलेंस करने की कोशिश करती है। अब पोइट्री इज नॉट पॉलिटिक्स, डिप्लोमेटिक एटीट्यूड नहीं होगा, जहां पर जो बात करनी है स्ट्रेट फॉरवर्ड करनी है, क्लियरली करनी है, और नॉट ट्राई टू स्ट्राइक अ बैलेंस, इट शुड सपोर्ट वेयर द ट्रुथ लाइज। और जो बिटर रियलिटीज हैं ये असल में उनको मतलब इससे देखना होता है और उनको पूरी तरह से क्लियरली हमारे सामने शेयर करना होता है जी। as poetry is not politics, it should not try to strike a balance, it should forward where the truth lies. And ठीक, neither rejects the influence of politics on poetry fully, not accept it totally. He seeks the ideal midway where poetry serves its role of entertainment and providing needed ideas for the betterment of humanity. कि इंसानियत की फलाह के लिए और उसके अपना रोल, और जहां पर मतलब जो है वो बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी है वो उसने उसको बताना है। टू हैने पोएट इज अ यूनिवर्सल फिगर, पोएट आपका एक पर्सनल नहीं होता, ही इज मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी बट ही इज आल्सो सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ह्यूमैनिटी, वो इंसानियत का नुमाइंदा है विदाउट रिगार्डिंग रिलीजियस, सेक्सुअल, रीजनल एंड सोशल डिफरेंसेस। इन तमाम चीजों को वो मतलब जब वो सेट असाइड करता है, ही कंसिडर पोएट एन ऑब्जर्वर नॉट अ पार्टिसिपेंट, वो ऑब्जर्वर मानता है, पार्टिसिपेंट नहीं। In political movement and an observer must take not sides, और जो है वो किसी की साइड नहीं लेता। The political and industrial influences have always been in the history of world, only 20th century is a little more prominent in this case, but then we have seen that
even the present age does not accommodate poetry because poetry is human, and where there is humans, you can say there is poetry. लेकिन industrialized, politicized and mechanized कि ये दुनिया इंडस्ट्रियलाइज है, पोलिटिसाइज है और मैकेनाइज्ड है, मैकेनिकल दुनिया बन चुकी है। लेकिन अगर आपने इस दुनिया को सर्व करना है, इस दुनिया के अंदर सर्वाइव करना है, तो वी मस्ट नो कि ये वाहिद सोर्स ऑफ पोइट्री है जो हमें सर्व भी करेगी और हम लोग जो हैं वो जिसके जरिए अपने मामला को प्रॉपर तरीके से सेटल भी कर सकते हैं।